سب سے پہلے آپ کو بتائیں فیصل آباد میں ہر ماہ ٹی بی کے 3000 مریض رپورٹ ہونے لگے۔ جین ایکسپرٹ سمیت دیگر تشخیص اور علاج کی سہولیات کے باوجود بیماری پر قابو نہ پایا جا سکا۔ پاکستان ٹی بی جیسی مہلک بیماری میں دنیا بھر میں 5ویں نمبر پر۔ پنجاب میں ہر سال 3 لاکھ افراد مبتلا ہونے لگے۔ ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ پنجاب نے محکمہ صحت کو خبردار کر دیا۔ صنعتی شہر میں فیکٹریوں کی چمنیوں سے نکلنے والا دھواں ٹی بی کے مریضوں میں اضافے کی وجہ بننے لگا۔ آپ کو بتائیں فیصل آباد میں ہر ماہ ٹی بی کے 3000 مریض رپورٹ ہونے لگے۔ جین ایکسپرٹ سمیت دیگر تشخیص اور علاج کی سہولیات کے باوجود بیماری پر قابو نہ پایا جا سکا۔ پاکستان ٹی بی جیسی مہلک بیماری میں دنیا بھر میں 5ویں نمبر پر۔ پنجاب میں ہر سال 3 لاکھ افراد مبتلا ہونے لگے۔ ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ پنجاب نے محکمہ صحت کو خبردار کر دیا۔ صنعتی شہر میں فیکٹریوں کی چمنیوں سے نکلنے والا دھواں ٹی بی کے مریضوں میں اضافے کی وجہ بننے لگا۔ اسی بارے میں مزید تفصیلات جانیں گے آزادار حسین سے۔ جی آزادار بتائیے۔ ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ پنجاب کی جانب سے محکمہ صحت انتظامیہ کو مراسلہ جاری کیا گیا۔ جاری کردہ مراسلے میں ٹی بی کے حوالے سے ذکر کیا گیا کہ دنیا بھر میں پاکستان کا جو ہے وہ 5واں نمبر ہے اور پنجاب میں ہر سال جو ہے وہ 3 لاکھ اس افراد جو ہیں وہ اس مرض کا شکار ہو رہے ہیں۔ حکومت کی جانب سے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتالوں میں جین ایکسپرٹ کی مشینیں فراہم کی گئی ہیں، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتالوں میں فراہم کی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مزید تشخیص کی جو سہولیات ہیں وہ فراہم کی جا رہی ہیں۔ گھر گھر جا کے جو ہے وہ اسکریننگ کا عمل بھی اپنایا جا رہا ہے، مگر یہ جو بیماری ہے بڑھتی جا رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے اور فیصل آباد میں کتنے مریض ہیں؟ ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر 4 ڈاکٹر عدنان صاحب جو کہ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر ہے ٹی بی کنٹرول پروگرام کے، ان سے جانتے ہیں۔ جی سر، کیا کہیں گے ٹی بی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ یہ ہر سال WHO کی طرف سے 24 مارچ کو ورلڈ ٹی بی ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس مرتبہ بھی 24 مارچ کو انشاءاللہ ورلڈ ٹی بی ڈے بنایا جائے گا، لیکن اس سے پہلے 1 مارچ سے پی ٹی پی نے پنجاب نے پلان چاک آؤٹ کیا ہے کہ ہم کیسے اویئرنیس پبلک کو دینے کے لیے ڈفرینٹ سیمینارز ہوں گے، واکس ہوں گی اور برانڈنگ کی جائے گی مختلف ہاسپٹلز میں اور پبلک ٹرانسپورٹ پہ برانڈنگ کی جائے گی۔ اس کا جو نیا سلوگن WHO نے دیا ہے، انویسٹ ٹو اینڈ ٹی بی سیو لائیوز، یہ نیا تھیم دیا ہے اس دفعہ۔ یہ ساری برانڈنگ ہوگی اور سیمینارز ڈفرینٹ ہیلتھ فیسلٹیز میں ہم بھی 10 تاریخ کو انشاءاللہ سیمینار جنرل اسپتال سمن آباد میں کریں گے۔ سارے اضلاع کو ڈائریکشنز دی گئی ہیں کہ اپنی جو پبلک پرائیویٹ مکس پارٹنرشپ ہے ہماری PPM جو ہمارے ساتھ الائز ہیں اس پلان میں ٹو اینڈ ٹی بی، ان کو آن بورڈ لے کے چیسٹ کیمپس کیے جائیں گے، ارینج کیے جائیں گے۔ اس میں بیسک چیز جو اویئرنیس ہے پبلک کے لیے، یہی میسج ہے کہ 2 ہفتے سے زیادہ کف ود سپوٹم فار مور دین 2 ویکس، بلغم کے ساتھ جو کھانسی ہے اسے ہم سسپیکٹ کہتے ہیں، اسے شک ہے کہ ٹی بی ہو سکتی ہے۔ ایک تو جو بھی ایسا مریض ہو اسے نیئر بائی ہیلتھ فیسلٹی پہ رپورٹ کرنا چاہیے۔ ہر ہیلتھ فیسلٹی پہ ہمارے جو شہر کی ہے یا پریفری میں رورل ایریا میں ہے، جو ہمارے 31 بیسک مینجمنٹ یونٹس بنائے گئے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، ان میں مائکروسکوپی کی سہولت موجود ہے، فری آف کاسٹ میڈیسن اویلیبل ہے۔ جو بھی ہو ایک تو اسے ریفر کیا جائے، ہمارے جو پرائیویٹ پارٹنرز ہیں وہ آن بورڈ لیتے ہیں، ہمارے GPs جو ہیں کنسلٹنٹس ہیں ان کے ذریعے جتنے بھی لوگ ہیں انہیں ریفر کیا جاتا ہے میڈیسن اور ڈائگنوسٹک فیسلٹیز۔ جیسے آپ نے پہلے بھی انٹرو میں بتایا کہ جین ایکسپرٹ ایک لیٹسٹ ہمارا انوویشن ہے جو بہت زیادہ سینسٹیو ہے ٹو ڈیٹیکٹ مائکرو بیکٹیریم ٹیوبرکلوسس کا جو ہوتا ہے جراثیم ہوتے ہیں۔ اس لیے ہماری جو عوام کے کرنے کے کام ہیں، جو ہمارے پور اکنامک سوشو اکنامک ایریاز ہیں ان میں بہت کلوز جگہوں پہ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، ان میں ایری نہیں ہوتا زیادہ ان کا جو ایٹماسفیئر ہے، اس وجہ سے بہت زیادہ اس کا سپریڈ ہوتا ہے۔ یہ ایئر بورن ڈیزیز ہے، جب مریض کھانسی کرتا ہے تو ہوا میں پھیل جاتے ہیں جراثیم، جو بھی کوئی اسے انہیل کرے گا سانس کے ساتھ اس کے پھیپھڑوں میں چلے جاتے ہیں یہ جراثیم اور اس کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے جو بھی اگر ڈائگنوزڈ مریض ہے جس کی تشخیص ہو گئی ہے، کنفرم کیس ہے ٹی بی کا، اس کے لیے یہ ڈائریکشن ہوتی ہے کہ وہ کور کرے اپنا پہلے جو 2 ہفتے اور 1 ماہ تک وہ بہت زیادہ انفیکشس ہوتا ہے، اس لیے اپنا منہ کور کرے، تھوکے نہ جگہ جگہ اور اپنے ایریاز کو صاف ستھرا رکھیں، یہی ہمارا میسج ہے۔ اور اس کے لیے ہم واکس بھی کریں گے، سیمینارز ہم مینیج کریں گے اور برانڈنگ بھی کی جائے گی۔ فیصل آباد کل سے بتائیں کہ فیصل آباد میں کیا صورتحال ہے؟ فیصل آباد میں ہمارا ڈیزیز برڈن ریلیٹیولی لو ہے۔ اوور آل تھرو آؤٹ دا ایئر 10 لاکھ کے قریب نئے کیس بڑھ رہے ہیں۔
पंजाब में 3 लाख ईयरली केसेस नए डिटेक्ट होते हैं। हमारा एवरेज 2000-3000 के करीब होते हैं जो एक माह में हमें नए डिटेक्ट हो रहे हैं केसेस। जब तक अवाम अपने प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लेगी, डायग्नोस्टिक और क्यूरेटिव अरेंजमेंट्स गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी है वो अपने अज़ादार, शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टीबी स्पेशलिस्ट डॉक्टर कामरान रशीद साहब। सर, बहुत शुक्रिया सिटी 41 को वक्त देने का। सर, जिला फैसलाबाद में हर महीने 3000 नए मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं टीबी के। सर, ये पूछना चाहेंगे कि टीबी के मर्ज की बड़ी बड़ी वजूहात क्या हैं? जी थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया अपने इज़हार ख्याल का। फैसला ये टीबी जो है वो एंडेमिक है। एंडेमिक से मुराद है ये हमारी एनवायरनमेंट में मौजूद है। टीबी का जरासीम हर जगह, हम बचपन में इसकी वैक्सीनेशन भी करते हैं लेकिन इसके बावजूद ये मौजूद रहता है। और इसका मेन तल्लक है लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के साथ। फैसलाबाद को 85 लाख आबादी से ज्यादा का शायर है और इसमें आबादी कंजेस्टेड है, पुअर अर्बनाइजेशन है और पॉवर्टी रेशो ज्यादा है और लैक ऑफ अवेयरनेस है। और उसकी टाइम जो किसी एक पर्सन को फैमिली में टीबी होती है तो वो इन्फेक्शियस हो जाता है और वो लोगों की जो उससे पूरी तरह आगाह ना होने की वजह से वो जब तक वो डायग्नोज होता है तो वो 2-3 जो पर्सन है और भी मुतासर हो चुके होते हैं। फिर उसके अलावा जो हमें जो इसकी मेन हम एक ट्रीटमेंट तो करना ही होता है हमने टीबी का, लेकिन उसके साथ उसकी प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। और प्रिवेंशन इसकी एक हम देते हैं बीसीजी वैक्सीनेशन के लिए और दूसरी जो है वो यही है कि हमने जो अपनी कफिंग हैबिट्स को और अपने आप को साफ रखना है और खांसते वक्त आपने अपने आप को दूसरों को बचाना है, इससे जगह जगह स्प्रिट नहीं करना। और अगर कोई टीबी का मर्ज तशखीस हो जाए फैमिली में तो उसको हमने कुछ अरसे के लिए उसको अलहदा करना है, सिर्फ उसका, ताकि वो उस खाना पीना अलहदा नहीं करना, सिर्फ उसकी जो खांसी है और उसकी स्पिटिंग है उससे दूसरे महफूज रह सकें। ये कुछ फैक्टर्स हैं, इन्हीं की वजह से फैसलाबाद में और बाकी जो अजला हैं हमारे पंजाब के या पाकिस्तान के, उनकी वजह से ये राइज हो रहा है। लेकिन इसके में हमारी स्ट्रेटेजी जो फिलहाल WHO में सिर्फ डॉट्स के नाम से है, हम डायरेक्टली उसको ऑब्जर्व करते हैं, स्क्रीन करते हैं और फिर उसको ट्रीट भी करते हैं। और कुछ हमारी जो तशखीस वाली जो डायग्नोस्टिक क्वालिटीज हमने इंक्रीज करनी हुई हैं, पहले वो ऐसी नहीं थी। जीन एक्सपर्ट है, स्पूटम है, तो जो डायग्नोसिस ज्यादा होने की वजह से भी ये रेशो कुछ बढ़ गई है कि हमारी स्क्रीनिंग प्रोसेस ज्यादा बेहतर है और वो जो छुपे हुए केसेस थे वो हम जल्दी डायग्नोस कर लेते हैं। इस वजह से भी महसूस हो रहा है कि शायद टीबी के जो मर्ज बढ़ रहा है। यकीनन ये टीबी का मर्ज मौजूद है लेकिन ये उसी रेशो से है जैसे पहले है, थोड़ा सा ज्यादा कम ज्यादा होता रहता है फ्लक्चुएशन। लेकिन उसकी मेन वजह जो हमारी स्क्रीनिंग जो प्रोसेस है वो बेहतर हो गया है। कुछ हमारी प्रिवेंटिव मेजर्स लोगों में जो होनी चाहिए उससे पूरी आगाही नहीं है, इस वजह से टीबी का मर्ज ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, शुक्रिया डॉक्टर कामरान रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज़ादार, आपका भी शुक्रिया। महंगाई की मुसलसल ऊंची उड़ान, महंगाई की शरह में मुसलसल तीसरे हफ्ते भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। महंगाई की मजमूई शरह 15.23% हो गई। रवां हफ्ते 19 अशिया की कीमतों में इजाफा किया गया। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में ब्रायलर मुर्गी तकरीबन 26 रुपए किलो महंगी हुई। LPG का घरेलू सिलेंडर 217 रुपए से जायद महंगा हुआ। घी के 1 किलो के पैकेट की कीमत में 16.71 रुपए इजाफा हुआ। रवां हफ्ते बच्चों का खुश दूध 5.69 रुपए महंगा हुआ। गरम मसाला, दही, चाय की पत्ती, मटन, ताज़ा दूध की कीमत भी बढ़ गई। आपको बताएं, महंगाई की मुसलसल ऊंची उड़ान, महंगाई की शरह में मुसलसल तीसरे हफ्ते भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। महंगाई की मजमूई शरह 15.23% हो गई। रवां हफ्ते 19 अशिया की कीमतों में इजाफा किया गया। अब आपको बताएं, फैसलाबाद में महंगाई और अवामी मसाइल के खिलाफ जमात इस्लामी का जिला कौंसल चौक फैसलाबाद में धरना। जिला कौंसल चौक पर स्टेज एहतियात स्क्रीन भी नस्ब कर दी गई। कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक खिताब करेंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा क्या सूरत हाल है? बात की जाए महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी की जानिब से आज जिला कौंसल चौक में धरना दिया जा रहा है। यहाँ पर जितने भी इशूज मौजूद है आम आवाम के हवाले से उसके खिलाफ धरना दिया जा रहा है कि हुकूमत
उन इश्यूज़ पर अमल दरामद करने के हवाले से नाकाम हो गई है। तो आज इस हवाले से यहाँ पर मरकजी अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक भी खुसूसी खिताब करेंगे। तो इस हवाले से यहाँ पर हमारे साथ जमात इस्लामी की क़यादत भी मौजूद है, हमारे साथ जमात इस्लामी के रहनुमा मौजूद है, उनसे बात भी करेंगे। जी मुझे बताइएगा, आज के धरने के हवाले से बताइएगा, यहाँ पर आज जो धरना दिया जा रहा है उसका क्या मकसद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात इस्लामी पूरे पाकिस्तान में हर ज़िले की बुनियाद पे धरने दे रही है, इसलिए कि मुल्क में महंगाई है, लाकानूनियत है, गुर्बत है, नाइंसाफ़ी है और स्टेट बैंक को IMF हमारे हुक्मरानों अपोजिशन ने मिलकर भेज दिया है। इसके खिलाफ हम एक आवाज़ उठा रहे हैं कि अवाम उन्नास जब जाके अपना हक मांगेंगे तो उनको हक मिल सकेगा। इस हवाले से समय जदोजहद का आगाज़ है। इस मुल्क के पाकिस्तान में अपना अवाम को इन करप्ट हुक्मरानों के रहम करम पे हम इंशाल्लाह नहीं छोड़ेंगे। जी बिल्कुल, इस हवाले से हमारे साथ जमात इस्लामी के दीगर रहनुमा भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी बताइएगा, आज के धरने के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये धरना अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद के मसाइल के हल के लिए स्टेट बैंक की जो गुलामी है उसकी और इसके अलावा जो है वो महंगाई का जो तूफान है इसके खिलाफ जमात इस्लामी ने 101 धरनों का ऐलान किया है, जिसमें से एक आज फैसलाबाद हो रहा है और इसमें मर्दो खवातीन शरीक हो रहे हैं। हम ये डिमांड करते हैं कि फैसलाबाद के जितने भी मसाइल हमने पेश किए हैं, जो पार्किंग का मामला हो या टूटी हुई सड़कों का मसला हो या प्लाजों का मसला हो, जो टोल प्लाजे वगैरह हैं, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, इन सब के मसाइल का हल जो है ये किया जाए और इसका ऐलान किया जाए। पार्किंग प्लाजे तामीर किए जाएं, सड़कें तामीर की जाएं, वरना ये धरना पहला तो हो सकता है, आखिरी धरना नहीं होगा। अब मुझे बताइएगा, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं, ख्वाजा सरा अब डाकुओं और चोरों को भी पकड़ेंगे। पुलिस फोर्स में ख्वाजा सराओं की भर्ती करने का खत्मी फैसला। IG पंजाब ने आइंदा भर्ती में ख्वाजा सराओं की कैटेगरी शामिल करने का जवाब दाखिल कर दिया। फील्ड या क्लैरिकल स्टाफ के लिए अहलियत पर पूरा उतरने वाले ख्वाजा सरा की भर्ती में कोई तफरीक नहीं की जाएगी। इसी हवाले से मजीद जानते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब बताइए। पंजाब पुलिस में अब ख्वाजा सराओं को भी भर्ती किया जाएगा। इस हवाले से IG पंजाब की जानिब से जवाब अदालत आलिया लाहौर में जमा करवा दिया गया। आशी जान नामी ख्वाजा सरा की जानिब से अदालत आलिया में ये रिट दायर की गई थी कि ख्वाजा सराओं को हर सरकारी महकमा में भर्ती के दौरान नज़रअंदाज किया जाता है, जिस पर अदालत आलिया की जानिब से पंजाब पुलिस में दीगर जो महकमा जात हैं उनके सरबराहों से जवाब तलब किया गया था। IG पंजाब की जानिब से जो जवाब अदालत आलिया में जमा करवाया गया उसमें उनकी जानिब से कहा गया कि आइंदा जो भी पुलिस की रिक्रूटमेंट या भर्ती की जाएगी उसका इश्तिहार देते वक्त ख्वाजा सराओं का कोटा भी मुख्तस किया जाएगा। फील्ड स्टाफ और क्लरिकल स्टाफ, दफ्तरी स्टाफ, तमाम कैटेगरीज में जो अहलियत के म्यार पर पूरा उतरते हैं वो ख्वाजा सरा भी उस भर्ती के दौरान अप्लाई कर सकते हैं। और ये भी इसी के साथ साथ IG की जानिब से ये भी गारंटी दी गई कि किसी भी ख्वाजा सरा को भर्ती के दौरान किसी किस्म की तफरीक का निशाना नहीं बनाया जाएगा। इस पर पंजाब पुलिस के तमाम जो अफसरान और हुकाम हैं, जिला मकबूल, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं, थाना सदर के इलाके में 19 साल लड़की से मुबैना इज्तिमाई ज्यादती चक 215 रेबे की रहायशी लड़की को नौकरी का झांसा देकर स्टेट एजेंसी के दफ्तर बुलाकर 3 पॉइंट पर मुबैना तशद्दुद और इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे फरजाना सदीक से। जी फरजाना बताइए। जी बिल्कुल, फैसलाबाद शहर में जाति के वाकयात में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। थाना सदर के इलाका चक नंबर 215 रेबे की रहायशी 19 साल लड़की के साथ मुबैना तौर पर इज्तिमाई बदफेली का वाकया रिपोर्ट हुआ है, जबकि वाकये का मुकदमा पुलिस ने 3 मुलजमान के खिलाफ दर्ज कर लिया है। मुकदमा मुतासरा लड़की के वालिद की मुदैयत में दर्ज हुआ, जिसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि उसकी 19 साल बेटी को तीनों मुलजमान ने नौकरी का झांसा देकर एक रियल एस्टेट एजेंसी में बुलाया और वहाँ पर न सिर्फ असलहे के जोर पर उसको मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, बल्कि इज्तिमाई तौर पर ज्यादती भी की और इसके बाद मुलजमान वहां से फरार हो गए। तमाम पुलिस ने वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन 5 रोज बाद भी पुलिस ताहाल किसी भी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी, जबकि पुलिस का इस पर कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद उसकी रोशनी में फैसला होगा और कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। जबकि मुतासरा फैमिली ने आला हुकाम से इंसाफ की अपील की है। उनका कहना है कि मेरिट पर तफ्तीश करते हुए उनको इंसाफ फराहम किया। फैमिली ने आला हुकाम से इंसाफ की अपील की है। फरजाना, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रही थी।
टोबा टेक्सटिंग में महकमा सुई गैस ने बगैर इतला के गैस की सप्लाई बंद कर दी। 12 घंटों से गैस की सप्लाई मुअत्तल, शहरी परेशान, होटलों पर शहरियों का रश लग गया। मजीद जानते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, बताइए। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सटिंग में अब पिछले 12 घंटों से सुई गैस गायब है और यहाँ पर जो शहरी हैं उनकी मुश्किलात में इजाफा हो गया है। शहरियों का कहना है कि 12 घंटे से सुई गैस नहीं है और वो खाना पकाने के लिए उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। टोबा टेक्सटिंग के जितने भी मुकामात जहाँ पर गैस नहीं है वहाँ पर होटलों पर इस वक्त बड़ा रश देखने को मिल रहा है। सुबह के लिए जो नाश्ते के लिए लोग यहाँ पर आए और अब जो है वो रोटी लेने के लिए लोग जो है वो होटलों में बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। इसी वजह से शहरियों को किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। सर आप बताइए कि 12 घंटे से गैस नहीं है, किस तरह खाना पकाना हो रहा है, क्या करना चाह रहे हैं, क्या मुतालबा करेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, तकरीबन जी रात दे गैस बंदे बहुत परेशानियां ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਨਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਲੰਚ ਲੈ। ਸਵੇਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜੀ। ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਫਿਰ ਜੀ ਕਿਤੋਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਆਟਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਲ ਆ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਲੋਕੀ ਭੁੱਖੇ ਫਿਰੇ, ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਗੈਸ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ जनाब। बिल्कुल, गैस की वजह से शहरियों का कहना है कि खाना पकाना उनके लिए मुश्किल हो चुका है। अब बच्चे जो है वो अब भूखे आज जो है वो स्कूल गए हैं। एक और शहरी से बात भी करते हैं, जानते हैं। आप बताइएगा, आप भी रोटी लेने के लिए आए हैं, क्या परेशानी हो रही, क्या कहना चाहेंगे? सर जी रात से गैस बंद है, रात के परेशान। हम सुबह सुबह ही तो बच्चे स्कूल जाने से बैठे हैं। अब रोटी लेने आए हैं तो रोटी आगे से नहीं मिल रही, वो कह रहे गैस नहीं आ रहा है। तो ये इनका मेहरबानी है कि ये रोटी उसी रेट पे दे रहे हैं, ज़्यादा रेट नहीं इन्होंने किया है। लेकिन जिस तरह रश डर है, आप ये रोटी का रेट बढ़ा देंगे गैस की वजह से हम परेशान हैं। मुबशिर, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जंग में मंडी शाह जीवना के डबल रोड का मंसूबा तैयार कर लिया गया। मोड़ मंडी ता मंडी शाह जीवना तक 10 किलोमीटर डबल कारपेटेड रोड बनेगा। मंसूबे के लिए हुकूमत पंजाब 30 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मजीद जानेंगे वसीम अहमद से। जी वसीम, बताइए। शहर में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है और नए मंसूबे जो हैं वो उनका भी जो मंजूरी दी जा रही है। इसमें आपको बताता चलूं कि मंडी शाह जीवना का जो दरीना मसला था उनके मेन रोड का, वो उसको हल करने के लिए इंतजामिया ने तवज्जो देनी शुरू कर दी है और 30 करोड़ रुपए की खतीर रकम से 10 किलोमीटर का जो डबल रोड है वो बनाया जाएगा, जो कि मोड़ मंडी से मंडी शाह जीवना तक का रोड जो है वो डबल बनाया जाएगा। इसके लिए तमाम मंजूरी जो है सूबाई वजीर खेल तैमूर भट्टी जो है वो खुद वज़ीर आला पंजाब से लेंगे और इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट है उसकी भी मंजूरी वज़ीर आला पंजाब से वजीर खेल वो खुद लेंगे, क्योंकि 30 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो है वो जंग का सबसे बड़ा मंसूबा होगा, जिस पर 30 करोड़ रुपए की खतीर रकम जो है वो खर्च की जाएगी। इसके लिए आपको बताता चलूं कि जो PC1 है, इब्तदाई मंजूरी जो है वो ज़िला इंतजामिया ने करके और ये मंसूबा जो है वो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को भिजवा दिया है और इस मंसूबे को आइंदा ADP में रखा जाएगा। इसके अलावा तमाम जितनी भी मंजूरी वसीम, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। महकमा जंगलात फैसलाबाद ने मानसून शजरकारी के अहदाफ मुकर्रर कर दिए। बिलियन ट्री सुनामी के तहत फैसलाबाद डिवीजन में महकमा जंगलात 42,29,000 से जायद पौधे लगाएगा। मजीद तफसीलात इमरान असलम से जान लेते हैं। जी इमरान, बताइए। जी बिल्कुल, बिलियन ट्री सुनामी के तहत फैसलाबाद में मानसून शजरकारी 2022 कैंपेन के तहत फैसलाबाद डिवीज़न बर में जो है वो 42,19,000 से ज़ायद पौधे लगाए जाएंगे। जबकि हम फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो फैसलाबाद में 10 लाख से ज़ायद के पौधे लगाए जाएंगे, जबकि जड़ावाला में जो है वो 4 लाख से ज़ायद पौधे लगाए जाएंगे, जबकि समुंदरी में 3 लाख से ज़ायद पौधों के हवाले से महकमा जंगलात शजरकारी करेगा और कमालिया में जो 4 लाख, गोजरा में 1.5 लाख से ज़ायद पौधे लगाए जाएंगे। अगर हम बात करें जंग में तो जंग में 14,13,000 पौधे लगाए जाएंगे, जबकि चन्योट में 6,26,000 जो है से ज़ायद पौधे लगाए जाएंगे। और महकमा जंगलात की जानब से मानसून शजरकारी 2022 के हवाले से अहदाफ मुकर्रर कर लिए गए हैं। महकमा जंगलात की जानब से जो है डिवीज़न भर में अभी तक 9 लाख से ज़ायद पौधे लगा दिए जा चुके हैं। महकमा जंगलात की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद डिवीज़न भर में जो है वो 42 लाख से ज़ायद पौधे लगाए जाएंगे। बिलियन ट्री सुनामी के तहत डिवीज़न भर में जो है वो शजरकारी मुहिम के हवाले से अहदाफ भी जारी कर दिए गए हैं और डिवीज़न भर में जो है सिविल डिफेंस, सरकारी अदारों और इसके साथ साथ जो है प्राइवेट इंडस्ट्री, फार्म्स, हाउसेज में भी पौधे लगाए जाएंगे और डिवीज़न भर में इमरान असलम, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। महकमा मदीन फैसलाबाद को हुकूमती ऐलान के मुताबिक 1 अगस्त से नया तालीमी सेशन शुरू करवाने पर सख्ती से अमल दरामद करवाने का फैसला। सीईओ एजुकेशन अली अहमद सयान ने मार्च में सेशन शुरू कराने वाले निजी स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई की वार्निंग कर दी। डिप्टी डीओज एजुकेशन को स्कूल की निशानदही की हिदायत, सील और जुर्माने के साथ रजिस्ट्रेशन भी मनसूख की जाएगी। पेशावर धमाका, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चिन्योट की हड़ताल, वकला का अदालती अमूर का बायकॉट। अदालतों में पेश न हुए डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का लवाहिकीन से इजहार अफसोस।
हुकूमत से जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। पिशावर के किस्सा खानी बाजार की मस्जिद में होने वाले खुदकुश धमाके में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार करते हुए तहसील बार एसोसिएशन भवाना की जानिब से हड़ताल की गई। तमाम वकला ने अदालती बायकॉट किया। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं फ़खर दीवान भुट्टा से। जी फ़खर, बताइएगा। जी बिल्कुल, पिशावर के किस्सा खानी बाजार की मस्जिद में होने वाले खुदकश धमाके में कीमती जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस के लिए तहसील बार एसोसिएशन की तरफ से आज मुज़म्मती हड़ताल की गई है। तमाम वकला ने आज जो अदालती है वो बाइकाट की है और अदालतों में पेश नहीं हो रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सदर तहसील बार एसोसिएशन मां रमानुल्लाह जब्बार। सर, बताइएगा कि हमारे मुल्क में दहशतगर्दी की एक नई लहर आई है और इस हवाले से क्या कहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये कोई पहली दफ़ा वाक़या नहीं हुआ। पिशावर में किस्सा खानी बाज़ार में धमाका हुआ है मस्जिद में। हम उसकी शदीद अल्फाज में, बल्कि यूँ कहते हैं हमारे पदने अल्फाज नहीं, जिस तरीके से हम उनकी मज़म्मत करें। हम एक गैरतमंद कौम है। हमारे गले कटते हैं तो कटते रहेंगे, हमारे घर बर्बाद होते हैं तो बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन हम हुसैन और हुसैनियत को कभी नहीं छोड़ेंगे। हम हुसैन के साथ हैं, हमारा मिशन हुसैनियत है। ये इनके बहुत का तरीक़ाकार है, पुष्ट पीछे इन्होंने वार करने होते हैं। हम इनकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और हम उनके ख़ानदान के साथ। शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे।